Very good morning to all of you. So let us discuss the next problem, and this question is also come from the LTA system. So this question was asked in GATE 2017 paper. GATE 2017 EC paper set 1. So let us first read the question. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. A continuous time signal x of t is given to us where t is in second is the input to a LTA system. So I told you in the previous lecture about this LTA system. What is the full form of LTA? LTA की full form क्या होती है? Linear time invariant system हमारे पास होता है. And impulse response is also given to us, and he is asking about the value of y of t. So I told you in theory lectures about LTA system. LTA system is having a frequency response given by h of omega is nothing but y of omega divided by x of omega. तो आप में बताइए, this frequency response h of omega is nothing but this is y of omega divided by x of omega. So in the last line they clearly mention about this the maximum value of mode of y of t, means we have to calculate this y of omega, and after calculating this y of omega we will take the inverse Fourier transform and give the value of y of t. So can I say this y of omega will equal to this is h of omega into में x of omega. तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर इस इक्वेशन से हमें मिलेगा. तो सबसे पहले हम गिवन सिग्नल की Fourier ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं. So this signal is given to us, and this signal is in the form of cos, and you know very well what is the Fourier transform of cos. So cos omega ct, the Fourier transform is nothing but this is pi डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस में दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी. नाउ कैन आई से डायरेक्टली इफ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस cos 4 into में cos 200 pi t, the Fourier transform will be 4 pi. This is delta of omega minus 200 pi plus में this is delta of omega plus 200 pi. Means if I am going to plot this signal, I will be getting one impulse at 200 pi and another impulse at minus 200 pi having amplitude 4 pi. तो इसको प्लॉट कर देते हैं. The Fourier transform of x of t will be x of omega. So I am plotting directly. So I will be getting one impulse at plus 200 pi, one impulse at plus 200 pi. This impulse will be available at minus 200 pi, and the amplitude will be 4 pi. Fine. Similarly, if I am going to plot the Fourier transform of this cos 400 pi t, so impulse will be available at plus 400 pi and minus 400 pi, and amplitude will be 8 pi, because जब कभी भी हम Fourier transform लेते हैं तो pi will come into picture. So I am going to plot directly. So this impulse will be available at plus 800 pi. This is omega, and similarly हमें एक impulse मिलेगी कहाँ पे, minus 800 pi पे, and this amplitude will be 8 pi. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x of omega को यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लॉट कर दिया. अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके बाद x of omega को प्लॉट करने के बाद अब हमें यहाँ पे h of t की Fourier ट्रांसफॉर्म को कंसिडर करना है. तो मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे h of t की Fourier ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करें तो h of t में एक तो हमें DC सिग्नल मिल रहा है और एक ये सिंक की फॉर्म में आ रहा है. तो आपने पढ़ा होगा जो सिंक सिग्नल होता है उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, साइन c ऑफ t. दिस सिग्नल इज रिटन एज साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय में दिस इज पाई टी. फाइन. तो जब कभी भी हम इस सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो इसकी विड्थ t के साथ यहाँ पे क्या है, पाई है. तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई से लेकर पाई तक. दिस इज ओमेगा, और 1/पाई को छोड़ के जो भी होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. तो सिमिलरली अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, द Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ h of t will be h of omega, and this x axis is nothing but omega. तो अगर हम इसको ओपन करें, so this is nothing but 2 sin of 300 pi t. तो अगर हम इसको ओपन करें, sorry it's I think sinc of sin, okay it is given in this form, sin 300 pi t divided by pi t. Okay, this is given in this form. Okay, fine. तो ये हमें इस फॉर्म में गिवन है, 2 sin 300 pi t डिवाइड बाय pi t, सिंक की फॉर्म में ये हमें गिवन है. तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो t के साथ कितना है, 300 pi है. तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये एक रेक्ट पल्स होगी
और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -300 पाई से लेकर +300 पाई तक, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, 2 होगा। इट इज़ ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो सिंक की फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स गिवन था उसको हमने क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। उसके बाद देखिए, अभी प्लॉट करने के बाद अब ये क्या है, t = 0 पे 600 है, तो ये h ऑफ t है, ये h ऑफ ओमेगा। 1 की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो मुझे बताइए अगर हम 600 की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, 600 इंटू में 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। सो दिस विल रिजल्ट इन 1200 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा. So this impulse will be available at omega is equal to 0 and the amplitude will be 1200 pi. But there is no need of representing this 1200 pi delta of omega, because if I am going to represent this, ultimately हमें क्या करना है, multiply करना है. So if you represent here a DC component, after multiplying this x of omega with h of omega, it will result in 0, because when you multiply you will be getting only impulse at 200 pi. तो फाइनली आपको जो impulse मिलेगी, एक इम्पल्स आपको कहाँ पे मिलेगी, +200 पाई पे, और इसी तरह से एक इम्पल्स आपको कहाँ पे मिलेगी, -200 पाई पे, एंड दिस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 4 पाई, इट विल रिजल्ट इन 8 पाई. तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है इसको हम क्या कहेंगे, y ऑफ ओमेगा कहेंगे. अब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, सो कैन आई से दिस y ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट दिस इज 4 पाई इंटू में 2 पाई, इट इज़ 8 पाई. सो दिस इज 8 पाई इंटू में दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा +200 पाई, प्लस में दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा -200 पाई. तो अगर हम इसकी इन्वर्स लिखना चाहें तो इसकी जो इन्वर्स होगी y ऑफ t, दिस इज नथिंग बट दिस इज 8 कोस ऑफ 200 पाई t. और वो हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है. तो मुझे बताइए अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, सपोज करो कोई सिग्नल हमारे पास ये साइनोसॉइडल है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये वैल्यू जो है ये तो मान लीजिए सपोज कीजिए 8 है, तो ये तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही रहेगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा मैक्सिमम जो है. तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया है. सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आंसर इज 8 यहाँ पे. ठीक है, थैंक यू सो मच.